نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، پاکستان میں روز بروز قیام امن اور دہشت گردی کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور مختلف علاقوں سے مختلف اطلاعات آتی ہیں، اور اس میں کون ملوث ہے اور کون اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ہے، یہ وقتاً فوقتاً پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے بارہا بلند آواز میں بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور حال ہی میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی ایک اہلکار ہیں سارا ایڈمز، ان کی جانب سے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں، اور یہ انکشافات ایسے ملک کے بارے میں ہیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوتی اس کے خلاف۔ اور آج کی جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، اور امریکی خفیہ ایجنسی کی یہ جو اہلکار ہیں، ان کے جو انکشافات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ بیگ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ یہ جو اہلکار ہیں یہ کون ہیں، اور ان کے جو انکشافات ہیں کتنے حد تک درست ہیں، اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ سارا ایڈمز جو ہے یہ ایک تو CIA کی ڈیٹا انالسٹ ہے، ان کی انٹیلیجنس انالسٹ ہے۔ اسے شہرت اس وقت حاصل ہوئی جس وقت بن غازی میں، لیبیا میں، ایک امریکی سفیر جو تھے وہ وہاں خانہ جنگی کے دوران بڑی بری طریقے سے مارے گئے تھے۔ تو اس میں پھر اس نے بہت زیادہ تنقید کی، اور اس نے کچھ انکشافات بھی کیے، اور اس کی وہ رائٹنگز جو ہے وہ شائع ہوئیں۔ تو پھر اس کو باقاعدہ جو ایک وہاں کی ہاؤس آف ریپریزنٹیوز کی جو ایک کمیٹی بنائی گئی اس کو پروب کرنے کے لیے، تو یہ اس کی ایک باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرتی، اس کو اسسٹ کرتی رہی۔ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب اس نے جس طریقے سے اپنے ایک TV شو میں یہ انکشاف کیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے انکشاف بھی ہے اور پہلے سے سب کو معلوم بھی ہے، لیکن ایک امریکی CIA ان کی ایک اہم اہلکار کی طرف سے یہ کہنا کہ انڈیا نے $1 کروڑ جو ہیں وہ طالبان کو دیے ہیں، TTP کو دیے ہیں اپنے کچھ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے پاکستان میں۔ اچھا، اب یہ اس میں دہشت گردی شامل نہیں ہے، اس میں یہ $10 ملین جو ہیں، $1 کروڑ دیے گئے ہیں وہ لوگ جن کو انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سرگرم رہے ہیں یا ہیں، علاوہ ازیں جو خالصتان تحریک کے حمایت کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ اس میں سکھ بھی ہیں اور باقی بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ ان میں سے جو باقاعدہ انڈیا کے اندر اس کے اوپر کچھ جو ویلاگ ہوئے ہیں اس کے اس انکشاف کے اوپر، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے کچھ ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، یا وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، یا وہ روپوش ہو گئے ہیں، اور محفوظ مکان انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ اتنے واضح ثبوتوں کے باوجود یہ سب کچھ کیوں نہیں آتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات جب سامنے آتے ہیں تو ہمارا اس کے اوپر رد عمل وقتی ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے اس کی طرف سے۔ اچھا بیگ صاحب، اس میں آپ دیکھیں کہ صرف وقتی نہیں ہوتا، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن لوگ اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کرتے یا اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیتے۔ اب دیکھیں آپ کو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بھی ایک بڑا اہم دہشت گرد جو ہیں وہ ان کا ایک ساتھی وہ بھی گرفتار ہوا، اور اس کے حوالے سے بھی خبر چلتی رہی، اور پاکستان میڈیا نے بھی اس کی کوریج کی، ایون کہ جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ایکسپلینیشن اور بیان بھی جاری کیا گیا، حکومت کی جانب سے بھی جاری کیا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پاکستان میں کچھ خاص علاقے ایسے ہیں جہاں پر دہشت گردی کی جڑیں ایک بار پھر سے مضبوط ہو رہی ہیں، اور اس تنظیم کا نام سامنے آ رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے، جس میں بلوچستان لبریشن آرمی ہے۔ اور یہ جو انکشافات ہیں سارا ایڈمز کے، اس میں بھی آپ نے بتایا گیا کہ بھارت نے براہ راست فنڈنگ BLA کو کی۔ آپ بات کر رہے ہیں، یہ کمانڈر ان کا ہے نصر اللہ جی، یہ جو دو ان کے کمانڈر پکڑے گئے ہیں، یہ محسود ہے اور وزیرستان سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کا والی بیان بھی سامنے آیا ہے، اور اس کا جو بیان ہے وہ سارا ایڈمز کے جو کچھ اس نے انٹرویو میں کہا ہے اس کو سیکنڈ کرتا ہے۔ جی، اسی طریقے سے جو کچھ یہ کمانڈر نصر اللہ جو ہے اس کا کالعدم تنظیم کا، اس نے جو کچھ کہا ہے سارا ایڈمز اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ انڈین حکومت نے کابل کے اندر BLA اور TTP ان کا اتحاد کرایا، اور اتحاد کرانے کے بعد
इंडिया ने कोशिश की कि बाकायदा टीटीपी को बलूचिस्तान के अंदर भी अड्डे फराहम करे, BLA उनको खुफिया मकामात जो है, और उनका मेरे ख्याल खुशदार में उनके लिए बाकायदा एक मरकज़ जो है वो कहा गया कि BLA को कि वो बनाया जाए, और पूरे बलूचिस्तान में उनके लिए खुफिया ठिकाने ऐसे बनाए जाएँ जो वहाँ पे दहशत गर्दी करने के बाद अपना पनाह हासिल कर सकें। अच्छा, अब वो ये कहता है कि ये सारा कुछ जो है इसके पुष्ट पे इंडिया है, और इंडिया के उसने मकासद भी ज़ाहिर किए हैं। उसमें पहला मकसद जो है वो तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो या CPAC जो मंसूबा है इसको सैबोटेज किया जाए, ठीक है, दहशत गर्दी के ज़रिए या किसी भी तरीके से। दूसरा मकसद ये है कि वो बाकायदा वो लोग जो लापता करार देकर पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडे का बायस बनते हैं, तो लोगों को अगवा किया जाए बलूचिस्तान में, अहम लोगों को, और अगवा करने के बाद या वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाकायदा कौम परस्ती के हवाले से बातचीत करते रहते हैं, और उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों पर लगाया जाए, चूँकि पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है जो बाकायदा इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उससे ताकि वो पाकिस्तान की फ़ौज और ISI या खुफिया अदारे जो हैं उनके ऊपर एक बाकायदा रियासत की क्रेडिबिलिटी खराब की, हाँ, उसको बदनाम किया जा सके। और उस जिस वक्त ये प्रोपेगेंडा हो तो फिर बलूचिस्तान की आवाम को जो है बताया जा सके कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल रहते हुए बिल्कुल गैर महफूज हैं, और आपके वसाइल पे जो है पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स, पंजाबी कह लें या पाकिस्तान की फ़ौज कह लें, अब वो चीन को भी कहते हैं, वो कहते हैं कि चीन भी जो है वो जो इसके मसाइल अपना वसाइल जो है बलूचिस्तान जो है उस पर काबिज है, और उसमें ख़ास तौर पर जो चीन के जो शहरी हैं, जो जहाँ उनके इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं, उन पर जो है हमला जो है वो बाकायदा उनका हदफ है। अच्छा, अब ये इंकशाफात इस तरह के तो हो गए, लेकिन इसको समझने के लिए अगर आप पीछे जाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप याद करें, रिकॉल करें, तो अजीत कुमार दोवल जो है, बिल्कुल, उसकी 2015 में एक वीडियो पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई थी जिसमें उसने डिफेंसिव ऑफेंस के हवाले से बातचीत की थी जी। ये सारा कुछ अजीत कुमार दोवल ने जो है ये अपनी, उस वक्त मोदी ने अभी हल्फ नहीं उठाया था, जीत चुका था, और उससे पहले अजीत कुमार दोवल जो है वो तमिलनाडु में एक शाविस्ता उनकी यूनिवर्सिटी है, मेरे ख्याल शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, वहाँ उसको बुलाया गया था, और उसमें मौजू ये था कि इंडिया के अपने अंदर जो धमाके होते हैं और ये सारा कुछ है, हालांकि वो फाल्स फ्लैग धमाके थे, सारा कुछ खुद था। उसके ऊपर तकरीर करते हुए उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह धमकी अमेज़ लबो लहजा इस्तेमाल किया था, साथ ही उसने एक डॉक्ट्राइन पेश की थी जी, और वो ये थी डिफेंसिव ऑफेंस, और उसने कहा था कि तालिबान जो हैं इनकी अक्सरियत जो है वो पैसे लेके जो है वो दहशत गर्दी करती है, ठीक है, और पाकिस्तान उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अगर उनसे दुगने पैसे दे के उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अंदर खाने दोहरे मसाइल में दो चार हो जाएगी, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी, अपने अवाम की सिक्योरिटी के हवाले से, और फिर उसकी तवज्जो जो है वो उस तरह मबजूल हो जाएगी। अच्छा, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरीके से उसको नरेंद्र मोदी ने अपना ये मुशीर बनाया, दिफाई सलामती का उसको मुशीर बनाया, तो उसके बाद अगर आप गौर करें तो वो जो कुछ उसकी लंबी तकरीर है वो उसको अगर आप देखें, वो स्क्रिप्ट उसका मिल जाएगा, तो जो कुछ बाद में होता रहा है वो बैन उस तकरीर के ऐन मुताबिक था, ठीक है, कि हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अंदर से तबाह करेंगे, सही है, पाकिस्तान की सियासत को तबाह और बर्बाद करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की आवाम का इत्मीनान जो है वो सियासतदानों से उठ जाए, पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी अदारों को डिस्क्रेडिट करेंगे, और जिस वक्त वो अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो लोगों के अंदर ये शऊर बेदार किया जाएगा पाकिस्तानियों में कि ये फौज जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, अवाम की हिफाजत क्या करेगी, ठीक है, और उसमें इन शॉर्ट के पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। अच्छा, बैक टू दिस इंटरव्यू, सारा एडम्स का जो इंटरव्यू है, अमेरिकी CIA की एहलकार है, अब आप ये देखें कि इस बात ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान हुकाम TTP खास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी बदअमनी में मुलव्विस है बराह रास्त तौर पर, ठीक है, पीछे उसके भारत है, और ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ हम पहले भी अंदर जाकर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, अब भी मजीद कार्रवाइयाँ करेंगे। उसके ऊपर सुहेल शाहीन जो है सियासी तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, उन्होंने कहा कि जी इसके तो फिर नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, तो ये ढिठाई जो है ये कैसे कम हो सकती है? उसमें ऐसा था कि शायद वो इस तरह का बयान उन्हें इस तरीके से ओपनली नहीं देना चाहिए था। कुछ भी हो, बहरहाल वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की बहुत मदद की है, पाकिस्तान जो है वो उसके साथ उनको एंगेज करे, उनसे बातचीत
उम्मीद करें कि, और ये बताना भी ज़रूरी नहीं है कि बहरहाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जिस वक्त ये कार्रवाई करनी तो चाहिए, लेकिन उसका इसका बरमला इस तरीके से इजहार जो है, लेकिन देखिए ये वही बात हो गई ना, मुसलसल कार्रवाइयां और मुसलसल बदअमनी, ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके ऊपर जो इंडिया का वजीर दिफा है राजनाथ, उसने भी तो कहा है ना, देखिए ना, जिस वक्त इंडियन अखबार गार्डियन ने ये सारी तफसील शाया की कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो फलां फलां लोगों को टारगेट और फलां फलां शहरों में टारगेट, और उसने बाकायदा टाइम भी दिया, इसका मतलब है कि उनको ये सारी तफसीलात जो है वो इंडियन अदारों की तरफ से फराहम की गई होंगी कि पाकिस्तान को मैसेज दिया जाए। सही। तो फिर उसके ऊपर राजनाथ का जिस वक्त वो एक टीवी का इंटरव्यू आया कि उसने हाँ जी हम ये कर रहे हैं और आइंदा भी घुस के मारेंगे, तो उसके ऊपर हम तनकीद तो कर रहे हैं ना कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के लिए अब जो जिस तरीके से सियासी बुनियादों पर उसको मुस्तरद किया जा रहा है, पाकिस्तान ने जो ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की बात की है और उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो दुश्मन है भारत, वो तो डिटरमिन के। अच्छा देखिए, अफगान हुकूमत के बारे में आपने बात की कि ख्वाजा आसिफ को यह बयान नहीं देना चाहिए था, या बतौर हुकूमत आपको नहीं कहना चाहिए कि हम दूसरे मुल्क में घुस के आपको मारेंगे, लेकिन देखें मुज़ाकरात की भी कई दफ़ा पेशकश की गई, सफारती तौर पर भी कई दफ़ा कहा गया कि जो अनासिर हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको रोका जाए, उसके बावजूद जो है ये मामला हल नहीं हुए और अफगान हुकाम, TTP का नाम बार बार आ रहा है, जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ या जो बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं उसमें आखिरी नाम जो आता है, बड़ा नाम आता है, वो TTP का नाम आता है, लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात के बावजूद पीछे नहीं हटा जाता और उनके मुल्क में ख़ास तौर पर उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये एक फैक्टर है, अगर आप मुसलसल किसी को रिक्वेस्ट करते रहें, उसको कहते रहें, करते रहें। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब देखने की बात ये है कि अभी दोहा में ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है अफगानिस्तान के हवाले से, उनकी मुआशी मदद के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान का वफद गया हुआ है, उसमें रशिया के लोग भी मौजूद हैं, अमेरिका के लोग भी आए हुए हैं जी। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि वहाँ पर पाकिस्तान ने ये सवाल उठाया हो कि अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में ना सिर्फ मुलव्वस है बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रही है TTP और BLA को। ये सवाल उठाया जाना चाहिए था। एक दूसरा ये कि जब इस तरह के ये सारे इंकशाफात आ चुके हैं तो हमें बाकायदा UNO से रब्ता करना चाहिए, हमें बाकायदा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, उन मुल्कों से रब्ता करना चाहिए जो बाकायदा इंडिया के खिलाफ एक चार्जशीट पेश कर चुके हैं। सॉरी, 4 सिख रहनुमा खालिस्तान तहरीक हामी जो कि कनेडियन शहरी थे, उनको कनाडा में कत्ल किया गया। उनमें एक बड़ा नाम था जिसकी वजह से अच्छा खासा जो है इशू बना हुआ है। इसके अलावा फिर पन्नू जो है वो जो अमेरिकन शहरी है और जो अमेरिका में खालिस्तान तहरीक का हामी है और उनका तो उस तहरीक का बड़ा अहम स्पोक्स पर्सन भी है जी। उसको कत्ल करने की साजिश थी जो कि CIA ने खुद जो है वो पकड़ी और अमेरिका। अच्छा देखिए, ये सब कुछ हुआ, कनाडा ने सफीर निकाला और सारे मामला कशीदा हुए भारत से। इंडिया के बारे में अमरीकी CIA की एहलकार, उनका ये इंटरव्यू है, ठीक है, और कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, बड़ी मोतबर एजेंसी है अमेरिका की, और अमेरिका है, सुपर पावर है। अमेरिका को मतलब इस चीज़ का इदराक है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बदअमनी और पाकिस्तान में मुलव्वस है बराह रास्त, तो अमेरिका भारत के हवाले से क्यों कुछ नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता ना कि वो उसके ऊपर भी दबाव रखना चाहता है ना, चीन के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने के लिए। आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो आप आलमी मंजरनामा बन रहा है जिसमें एक बाकायदा तकसीम हो रही है, वाज़े तौर पर वो जो एक ओल्ड वार के ज़माने का एक ब्लॉकेज बन रहे थे, तो उसमें नज़र आ रहा है कि ये चीन और रशिया जो है वो एक हो चुके हैं और चीन जो है अपना असर रसूख बढ़ा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, अपने जो इक़्तिसादी और मुआशी जो मावनत है उन मुल्कों की करके, उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं वो जो कि मुख्तलिफ मुल्कों को दे रहा है और वहाँ पे वो बड़ा ठीक ठाक सरमायाकारी भी कर रहे हैं। उसमें खिते के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, बल्कि यूरोप तक वो अपने इस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाह रहा है। तो इससे अमेरिका जो है वो खौफज़दा भी है। अब उसे इस इलाके में एक इंडिया ही रह सकता है बच गया है जिसे वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करे। वजह यह है कि चाइना जो है वो तिब्बत तो चाइना के पास है, इसके अलावा जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, 2-3 और उनकी रियासतें हैं जिसके ऊपर चाइना का क्लेम है कि ये हमारे इलाके हैं और उसके ऊपर बाकायदा वो कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और उन इलाकों के ऊपर उनका क्लेम जो है वो इतना एक जामे है कि उसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, बल्कि उन इलाकों के या उन रियासतों के लोगों को वो
इंडियन पासपोर्ट पर वीज़े भी नहीं देते अगर वो चाइना जाना चाहे। उसमें हालत ये है कि वहाँ पर जो उनके अमन मुज़ाकरात होते हैं उसमें जिस वक्त इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे जर्नैल अगर जाएं जो कि उन इलाकों में तैनात हैं तो वो उनको कबूल नहीं करते, और इसलिए कि वो उनको वो कहते हैं कि ये इंडियन पासपोर्ट पे नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे इलाके हैं जिस पर इंडिया नाजायज काबे से। अब उसके खिलाफ जो है वो अगर किसी को तो इस्तेमाल करना है तो वो इंडिया ही है ना जी। और इंडिया जो है वो असल में एक अपनी इस ख्वाब में मुब्तला हो चुका है कि वो एक हिंदू रियासत के तौर पर पूरे खित्ते में उन्होंने अखंड भारत कह लें या वो जो सारा कुछ उनका हिंदुत्व उनका है पैगाम है, उसमें नरेंद्र मोदी को इस दफ़ा इलेक्शन में वो अक्सरियत तो नहीं मिली कि वो पहले की तरह साबका 2019 के बाद की तरह कोई कानून साजी कर सके, लेकिन बहरहाल वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो उसी तरीके से जारी हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इशू ये है कि हम इस इशू को, इस मसले को आलमी सतह पर किस तरीके से उजागर करते हैं। आप अपने, हम तो ये प्रोग्राम ठीक है कर रहे हैं, आप अपने नेशनल जितने भी पॉपुलर टेलीविजन चैनल्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कितने प्रोग्राम किए। वो जो उनका प्राइम टाइम है उनके पास सियासत पर गुफ्तगू करने के और मुख्तलिफ सियासतदानों को बिठाकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और पब्लिक को ज़्यादा मजीद मायूस करने के, और क्या होता है या सिर्फ पॉपुलर ट्रेंड्स जो है उनके ऊपर बात करने के तो यही है ना। तो ये इशू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए और बाकायदा एक जहन साजी करनी चाहिए आलमी सतह पर भी कि इंडिया जो है वो बाकायदा एक दहशतगर्द रियासत है जो खुल के आ गया ना कि वो जब सीएए के वो एक खातून ने कह दिया, मुलाजिम खातून ने कह दिया कि उसने $1 करोड़ दे के पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग कराई है, फिर जो उनका कालादम जो जमात है टीटीपी क्या उसका वो एक अहम जो पकड़ा गया, ये बहुत बड़ा। इसके ऊपर हमें अपने जो सिक्योरिटी अदारे हैं, फौज है, फौज के खुफिया अदारे हैं, वजह तौर पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि बलूचिस्तान में ये कुलभूषण यादव के बाद ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है दहशतगर्दों के खिलाफ। ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर भी कोई ज्यादा बात नहीं हो रही। आप देख लें, बस वो एक खबर दे दी गई, खबर तो टेलीविजन चैनलों ने भी दी, अखबारात ने भी शाया की, लेकिन उसके बाद तो खामोशी है, नहीं कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई आप उसको उजागर करें, आप बताएं, दुनिया को बताएं। ठीक है जी, आपके सफारत खाने हैं पूरी दुनिया में, वो इस चीज को उजागर करें, देखें जी इंडिया हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें मुआशी तौर पर भी कमजोर कर रहे हैं और हमारा जो एक अमन व अमान है उसको भी वो बर्बाद किया होगा। आखिर देख लें हर जगह हर वक्त कोई ना कोई धमाका और कोई ना कोई। लास्टली बेग साहब, लास्ट क्वेश्चन कि इस सूरत हाल में जब आपके सामने दुश्मन भी वाज़े है और दुश्मन के जो पार्टनर्स हैं वो भी वाज़े हैं, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बतौर रियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सफारती सतह पर क्या ऐसा करना चाहिए जो माजी में नहीं होता रहा, क्योंकि मुख्तलिफ UN नेशनल असम्बली में भी और आपको मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान के नुमाइंदे ये बात करते नज़र आते हैं, इंडिया के खिलाफ भी बात करते हैं, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ वो इंडिया के खिलाफ बात करते नजर आते हैं तो आपको याद होगा ये मौजूदा हुकूमत के आने के बाद आपके जहन में होगा हमारे जो वजीर खारजा हैं लंदन में, उन्होंने बयान दिया था कि हमें इंडिया से तिजारत करनी चाहिए और इंडिया के साथ दोस्ताना मरासिम की। वो तो देखिए एक मतलब आप अंदाजा करें ना, मतलब फोर्सेस के एक सिपा सालार भी कह चुके हैं वो उनके बारे में भी है कि वो होना चाहिए था, इंडिया से होना चाहिए। वो तो देखिए बात ये है कि वो तो मशरूत है ना, उसके लिए तो बाकायदा हमारे सिपा सालार ने वाज़ेह किया है कि जब तक मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं होता इंडिया के साथ इन मसाइल पर सोचा ही नहीं जा सकता। वो तो पाकिस्तान जो है वो उसकी अग्रेसिव तो पॉलिसी नहीं, लेकिन ये जो बयानात हैं सियासी तौर पर भी उनके पीछे भी मसला कश्मीर की हल्की सी बैक तो लगी होती है, साथ थोड़ी चिट लगी होती है। की जो खारजा पॉलिसी है वो कभी भी ऑफेंसिव नहीं रही किसी भी मुल्क के खिलाफ। अब होनी चाहिए ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। हम पुरअमन मुल्क हैं, हम एटमी कुव्वत हैं और अब भी पाकिस्तान का जो है वो जो तरीकाकार है वो यही है कि हमने अमन के ज़रिए जो है मामलात को आगे बढ़ाना है, लेकिन अमन जो है वो बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है, वो बाज ही नहीं आ रहा। देखे ना, पहले तो वो बाकायदा हमारा जो मशरक़ी सरहद है वहाँ से वो कार्रवाई किया करता था, अब उसको अफगानिस्तान की तरफ से मौका मिल गया कि वहाँ से वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और अपना कार्रवाई जो है वो जारी रखे। हल क्या है इसका हुकूमती सतह पर? इसका हल ये है कि इस मसले पर, दहशतगर्दी और क़याम अमन के हवाले पर सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर पूरी कौम को अपने सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़े होना चाहिए और दहशतगर्दी का हमेशा कला कमर करने जो है वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि जब आप
सियासत कर रहे हैं ना, ये देख लें, आप कह रहे हैं कि जनाब हम इसको तस्लीम, अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन है हम इसको तस्लीम नहीं करते, और भाई वो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। और फिर जिस वक्त ये सारा एडम्स की ये बातें सामने आ चुकी हैं, या वो जो टीटीपी का कमांडर पकड़ा गया वो कह रहा है हाँ जी हम मुलव्वस हैं और इतने लोग हैं और इसके साथ BLA और टीटीपी का इत्तेहाद भी हो चुका है, तो उसमें फिर बाकी क्या शक व शुबा रह जाता है। तो उसके ऊपर भी अगर हम सियासत करेंगे तो यही कुछ होता रहेगा जो पहले भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब। और नाजरीन एक बार फिर आपको बताते चले, अमरीकी CIA एहलकार की जानिब से इंकशाफात, बड़े इंकशाफात, भारत के पाकिस्तान में बदअमनी में मुलव्वस होने के इंकशाफात और उसका आलाकार बना अफ़गान जो अफ़गान हुकूमत है, TTP है, और इसी के ऊपर हमने बात की। और इस लम्हे, इस मौके पर और इस दौर में जिस वक्त पाकिस्तान में बदअमनी के मसाइल एक बार फिर जन्म ले रहे हैं और क़याम अमन की सूरत हाल कुछ बिगड़ती हुई कुछ इलाकों में नज़र आती है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करने की और रियासत को सपोर्ट करने की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।